خوش آمدید. میں تو آپ کا انتظار کرتا تھا کہ آپ اسکرین کے آگے بیٹھے ہی ہوں گے کہ نہیں، لیکن آپ بہت اچھے ہیں. آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ جو میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ سن سکیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ ایک دوسرا مددگار بھیجوں، اور وہ تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمہارے اندر ہوگا. لیکن اس مددگار، یہ فی الحال تو ان سے بات ہو رہی تھی جو انیشیل یا بنیادی شاگرد تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. ان سے خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور اب ان کو کیا کہا کہ تم اس مددگار کو حاصل کرو گے، لیکن قبل اس کے کہ وہ مددگار آئے باپ کی طرف سے تمہیں انتظار کرنا ہوگا. چنانچہ رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کے پہلے باب کے درمیان سے تقریباً ہمیں بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ 120 کے قریب وہ بنیادی طور پر شاگرد تھے. ایک سوال پوچھوں، اجازت ہے؟ یسوع مسیح کے بنیادی شاگرد کتنے تھے؟ یعنی کتنے شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح کے؟ 12. ہاں، میں زیادہ تر یہی سنتا ہوں کہ جی 12 ہے، لیکن پتہ ہے جواب آپ کو کتنے مارکس ملے؟ 0. کیوں؟ اس لیے کہ یسوع مسیح کے وہ جو بنیادی طور پر شروع میں چنے گئے ہیں وہ تو وہ 12 ہی تھے، لیکن یسوع کے صرف 12 شاگرد نہیں تھے. اس کے بعد وہ تبدیل ہوئے اور 70 کے قریب ہوئے ہیں، پھر 120، پھر 500، پھر ہزاروں کے حساب سے تعداد ان شاگردوں کی بڑھتی چلی گئی. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے او جی یسوع کے 12 شاگرد تھے. نو، صرف 12 شاگرد نہیں تھے. اگر آپ کلیئر کٹ بات کریں کہ وہ جن کو شروع میں اس نے چنا بنیادی طور پر جو اس دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرے، وہ 12 تھے، تو میں اس بات سے متفق ہوں. لیکن اگر صرف یہ کہا جائے یسوع کے شاگرد کتنے تھے اور جواب ہو 12، تو یہ غلط ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ان شاگردوں سے یسوع نے یہ کہا کہ دوسرا مددگار آئے گا، لیکن اس کے آنے کے لیے مجھے جانا پڑے گا. جے کدی میں جاواں گا نہیں تے او آوے گا کس طرح؟ میرا جانا ضروری ہے، لہذا اس کو جانا پڑا تاکہ دوسرا مددگار آئے. تو یسوع جی اٹھا. جی اٹھنے کے 40 دن بعد تک زندہ مسیح کے طور پر وہ نظر آتا رہا، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح آسمان پر صعود فرماتے ہیں، اور یہ وعدہ کر کے کہ روح القدس دوسرا مددگار آئے گا اور وہ تمہارے ساتھ ابد تک رہے گا. جس مددگار کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کے بارے میں ہے کہ یہ خدا سے باتیں لے کر تم تک پہنچائے گا، بھولی ہوئی باتیں تمہیں یاد دلائے گا، ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے اندر ہوگا، وغیرہ 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 وغیرہ، اور بہت کچھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، کوئی شخصیت نہیں ہو سکتا الگ سے، یعنی جس کی 2 ٹانگیں ہوں، نوزی بھی ہو، ناک بھی ہو، آنکھیں بھی ہوں، بال بھی ہوں. یہ اس طرح کی شخصیت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی شخصیت کا خداوند یسوع مسیح وعدہ کرتے تو وہ شخصیت میرے اندر کیسے ہوتی، اور پھر اور تو اور ابد تک میرے ساتھ کیسے رہتی، کیونکہ ہر بشر کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ تو ایک اہم ترین بات ہے. اسی لیے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ یہ پاک روح، خدا کا روح
होली गोस्ट, होली स्पिरिट या रूह कुद्स की बात हो रही है, क्योंकि वही हमारे अंदर हो सकता है और हमेशा तलक हो सकता है। ये रूह कुद्स खुद खुदा है और ये हमारे अंदर, हमारे दिल में उस वक्त होता है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते, अपने गुनाहों से तौबा करते और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को अपने लिए कबूल करते हैं कि वो मेरे लिए मर गया, और फिर दिल का दरवाजा खोलते हैं, खुदावंद मेरे दिल में आ ताकि आइंदा के लिए मैं तेरे लिए जीऊं। तो तब ये बात बनती है, तब रूह कुद्स इंस्टॉल होता है, वरना इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। देखिए, अगर आप टेलीनॉर की सिम निकालें, अभी नहीं निकालना, वैसे मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने सेल फोन से टेलीनॉर की सिम निकालना चाहें, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं जैज की डालूं, तो इसके लिए आपको सेल फोन को खोलना पड़ेगा। कवर खुलेगा, पहले वाली सिम निकलेगी ते दूजी पेवेगी। कवर खुलेगा ते पहले वाली सिम निकलेगी, उत्ते वाली सिम पेवेगी। ये दिल खोलने की बात है कि खुदावंद हमारी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में आ, ताकि मैं तेरे लिए जीऊं। तो यूं खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आता है, और इसका सबूत यह है कि जब रूह कुद्स हमारी जिंदगी में होता है, हम दूसरों में जाकर गवाही देते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, गलतियों 5 की 22-23 के मुताबिक रूह कुद्स के फल, रूह कुद्स का फल है जो हमारी जिंदगी से फिर नजर आता है और पता चलता है कि इस शख्स की जिंदगी में रूह कुद्स है कि नहीं। मैं बात यह कर रहा था कि रूह कुद्स के आने के लिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम इंतजार करो तावक्ते के रूह कुद्स न आए। तो वो जो 120 की जमात थी, यरूशलेम के एक बालाखाने में जाकर एक प्रेयर मीटिंग, एक प्रेयर रिट्रीट में शामिल हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक दुआ की, मुसलसल दुआ। साडे कोलों ते 5 मिनट भी नहीं होंदी, हसदे हो पे, यही तो बात सच है ना, यही तो है। लेकिन उन्होंने इतनी देर तक दुआ की, फिर आसमान खुला। आसमान तो उसी वक्त खुल गया था यीशु ने जब सलीब पर अपनी जान दी, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि रूह कुद्स का नज़ूल तब हुआ जब इतने दिनों तक वो दुआ करते रहे। हम कहते हैं खुदावंद इस काम के लिए आसमान खुल जाए, इसके लिए ये हो जाए, इसके लिए ये हो जाए, इसके लिए ये हो जाए, और दुआ हम यूं करते हैं, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद वो कर दे, बस चलते फिरते या बैठकर या खाने वाली मेज पे रूटीन के मुताबिक, रस्मी सी दुआ। हमें इनसे जरा बाहर निकलना है और एक मुख्तलिफ किस्म की दुआ करनी है। अगर आपके पास फैसिलिटी हो, आप अकेले कमरे में हो, गरज बरस कर खुदावंद के हुजूर दुआ करें, इख्तियार के साथ दुआ करें, इख्तियार के साथ, क्योंकि ये रूहानी जंग है और इस रूहानी जंग में बड़े इख्तियार के साथ दुआ करने की जरूरत है। तो गोया खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इंतजार करना है रूह कुद्स का, और ये शागिर्द मुसलसल वहां दुआ करते रहे 10 दिन तक, मुसलसल दुआ। अंदाजा कीजिए 120, और इसमें सिर्फ हजरात ही शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें खवातीन भी शामिल थे, दोनों मेल एंड फीमेल, वो मिलकर दुआ कर रहे थे। और फिर ठीक 10वें दिन खुदावंद यीशु मसीह के वादे के मुताबिक, जैसा आपने अपने शागिर्दों को फरमाया था, बायन वैसे ही उस रूह कुद्स का नज़ूल हुआ। मैं आपको अमाल 2 बाब में ले चलूंगा, लेकिन सुनिए कि जब रूह कुद्स का नज़ूल हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर क्या इनकलाब आया, फिर क्या तब्दीलियां आई।
जिंदगियां किस तरह तब्दील हो गई, किस तरह से लोगों ने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया। जब रूहुल कुद्दस आया तो उसका मकसद क्या था, क्या रीजन था कि रूहुल कुद्दस दिया गया, इस पर तो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मेन बात यह कि मैं तुम्हारे साथ तो वक्ती तौर पर हूं, लेकिन जो मददगार आएगा वो तुम्हारे साथ अब तक होगा। ये थी वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकली है। चूंकि रूहुल कुद्दस की आमद के बारे में एक वसी मजमून है, इस पर मैं बात करूंगा अगले सेशन में। लेकिन केवल इसके कि मैं अगले सेशन में जाऊं, मैं आपकी खिदमत में आपके लिए स्पेशली दुआ भी करना चाहता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, आपका ताल्लुक किसी ही डिनोमिनेशन से क्यों नहीं, आपका ताल्लुक किसी ही चर्च से क्यों नहीं है, गुनाह नहीं है। मैं आपको नहीं कहता हूं कि मुख्तलिफ चर्चिज में जाना गुनाह है, या आप जिस चर्च में जाते हैं वहां जाना गुनाह है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप जहां जाते हैं लगे रहो जिथे लगे हो। लेकिन एक अहम तरीन बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है, अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को जरूर दें, अपने आप को उसके हुजूर पेश करें, उसको कहें खुदावंद मैं गुनाहगार हूं। शायद ये पैगाम तेरे लिए है नौजवान, मेरे भाई मेरी बहन, बेटे, ये पैगाम तेरे लिए है। आज अपनी हार मान ले, अपने गुनाहों से तौबा कर और अपने गुनाहों का इकरार कर, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दे। उससे कह खुदावंद मेरी जिंदगी में आ, मैं अपना दिल तुझे देता हूं, मुझे बदल। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपने सरों को झुकाएं। मैं बहुत लंबी चौड़ी दुआ नहीं करूंगा, मुख्तसर करूंगा ताकि आपको बरकत मिले। आसमानी बाप, तेरे कलाम की इन सदाकतों के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अपने इस भाई को, बहन को, नौजवान को, बुजुर्ग को जो आज अपनी हार मानता है, अपने हथियार डालता है, यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप इसे कबूल कर, इसको अपना बना ले, इसके खानदान में और इसकी शख्सी जिंदगी में तू चलता और फिरता नजर और मुमकिन करके ये आइंदा के लिए तेरे जलाल और तेरी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल होता रहे। हर तरह की लानत को यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, इसकी जिंदगी और इसके खानदान से हमेशा के लिए दूर चला जाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मुसलसल देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।